Good morning to everyone. We will be doing this sum in front of your screen. A company has opening balance of rupees 10 lakh in its tangible assets account. So opening balance is of 10 lakh in the tangible assets, and that is the WDV. What do you mean by WDV? WDV means written down value method. Sorry, WDV means written down value, and written down value is calculated when from the original cost we deduct the depreciation. Written down value कब मिलता है? When from the cost of the asset, when depreciation is deducted, the left amount is known as, the remaining amount is known as written down value. This written down value is the amount from which the depreciation has been deducted. What is the accumulated depreciation? Accumulated depreciation was rupees 6 lakh. Opening balance is 10 lakh. There was an addition of fixed asset. Addition means purchase of fixed asset at the beginning of the year while there was no sale of fixed asset. 1 minute. There was an addition of fixed asset of, here one cent, of rupees 5 lakh, of rupees 5 lakh at the beginning of the year while there was no sale of fixed asset. They say addition था fixed asset में 5 lakh rupees का when at the beginning of the year while there was no sale of fixed asset. We have not sold any fixed asset in the current year. Prepare a note on tangible assets if the depreciation is charged for the year at 15% on original cost. What we have to prepare? We have to prepare the note for tangible assets. We have to find out the note for tangible assets. Now here, the first column, we call it particulars. Then the second one is gross block. नेक्स्ट वन ग्रॉस ब्लॉक से हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं. देन वी गेट अवर नेट ब्लॉक. सो ग्रॉस ब्लॉक इज द ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें से वी डिडक्ट डेप्रीसिएशन, सो वी गेट द नेट ब्लॉक. सो ग्रॉस ब्लॉक में क्या होगा? ओपनिंग एडिशंस, डिडक्शन है तो डिडक्शन भी दिखाएंगे. क्लोजिंग डिडक्शन मीन्स सेल, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में ओनली ओपनिंग एडिशन इज देयर, देन देयर इज opening depreciation during the year then the closing. Here, opening net block and closing net block. So here what we have to find out? Tangible assets. Tangible asset में firstly cross block means original cost. So opening original cost क्या है asset का?
10 लाख का WDV है, दैट इज डेप्रिसिएशन माइनस करके 10 लाख है, तो अभी तक डेप्रिसिएशन कितना जमा हो गया है? 6 लाख. देन व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट? वेर अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहेगा? 16 लाख. करेक्ट. अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे तो द ओरिजिनल कॉस्ट विल बी हाउ मच? 16 लाख. ओरिजिनल कॉस्ट इज व्हाट? WDV, जिसमें से ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो WDV मिलता है. डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा. टेल मी, इन द ईयर हैव वी डन एनी परचेसेस ऑफ फिक्स्ड असेट? क्या हमने कोई टैंजिबल असेट खरीदा है इन द ईयर? यस, एडिशन मींस परचेस. सो एडिशन कितने का है? 5 लाख का. Then how much will be the closing, opening plus addition? कितना रहेगा closing? दोनों को ऐड करो, 21 लाख. दोनों को ऐड करेंगे तो the opening will be, sorry, the closing will be 21 lakh. Now opening depreciation, opening accumulated depreciation कितना है? क्वेश्चन में दिया है, it is 6 लाख. Now current year depreciation निकालना है, ड्यूरिंग द ईयर depreciation. वो कैसे निकालेंगे? current year depreciation we will calculate on 16 lakh. 16 लाख ये हमारे पास स्टार्टिंग से ये डेप्री, और यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन. See, prepare a note on tangible asset if the depreciation is charged for the year at 15%. depreciation का रेट कितना है? 15% on original cost. मतलब हमें एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन निकालना है, WDV पे नहीं. सो 15% डेप्रीसिएशन निकालना है, तो 16 लाख तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है. तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में 16 लाख पे 15% into 1 year, that is 12 divided by 12. and हमने जो खरीदा है नया असेट, it is for 5 lakh into 15% into, ये भी बिगिनिंग में खरीदा है तो ये इस पे भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन जाएगा. कितना होता है? गिव द आंसर. First one is 2,40,000 and second one is how much? How much is the second one? 5 lakh पे 15% depreciation. निकालो, how much you get? 5 lakh calculate 5 lakh into 15%, it is coming 75,000. तो दोनों को ऐड करेंगे तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगा, which is coming to 3,15,000. तो करंट ईयर में we have two tangible assets. One is 16 लाख का जिसमें 2,40,000 है, दूसरा नया खरीदा 5 लाख का जिसमें 75,000 है. तो दोनों को ऐड करके we get 3,15,000. Now how much will be the closing? ऐड करो, पिछले साल तक 6 लाख का जमा हुआ डेप्रिसिएशन है, अभी 3,15,000. तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 9,15,000. नाउ WDV कैसे निकालते हैं?
ओपनिंग नेट ब्लॉक कैसे रहेगा? ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग एंड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग, मतलब हमारे पास 16 लाख का एसेट था, टैंजिबल एसेट, जिसमें से हमने 6 लाख का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो opening net block comes to how much? 10 lakh. Opening net block comes to 10 lakh. कैसे मिला? क्वेश्चन में भी दिया है, एंड हमारे ओरिजिनल कॉस्ट है 16 लाख, जिसमें ओपनिंग ऑफ द ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 6 लाख, तो 16 लाख माइनस 6 लाख, दोनों ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक के ओपनिंग से डेप्रीसिएशन का ओपनिंग माइनस किया, तो यू गेट नेट ब्लॉक ओपनिंग. तो कैन एनीवन टेल मी नेट ब्लॉक क्लोजिंग कैसे मिलेगा? नेट ब्लॉक क्लोजिंग कैसे मिलेगा? क्लोजिंग ऑफ ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, हमें मिलेगा नेट ब्लॉक क्लोजिंग. मींस ग्रॉस नेट ब्लॉक ओपनिंग कैसे मिलता है? ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन ओपनिंग. एंड ग्रॉस ब्लॉक नेट ब्लॉक क्लोजिंग कैसे मिलेगा? ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग दैट इज 21 लाख. पूरे साल में वी हैव 21 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रीसिएशन, जिसमें टोटल इन द टोटल वी हैव 16 lakh का asset and addition 5 lakh, which is coming to 21 lakh, and total depreciation what has got accumulated is 9,50,000. So closing net block कैसे मिलेगा? 21 lakh में से 10 lakh, तो हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पे लिख सकते हैं opening net block is equal to opening gross block minus opening depreciation, that is 16 lakh minus 16 lakh minus 10 lakhs. 16 lakh minus 10 lakhs, which is 16 lakh minus what is the opening depreciation? It is 6 lakh, which is equal to 10 lakhs. Now same way, what is closing net block? Closing net block is equal to closing gross block minus closing depreciation, which is equal to 21 lakh is the and here see closing gross block is 21 lakhs minus closing depreciation is 9,15,000, which is equal to how much it is coming? 11,85,000. 11,85,000. So when we minus, we get 11,85,000. 11,85,000. So we will write here 11,85,000. So with this sum is over. They have only asked us to calculate the tangible note of tangible asset, जिसमें हमें opening question में WDV was given. Opening is what? The opening balance of 10 lakh plus depreciation. मतलब हमें ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, तो 10 लाख में हमने 6 लाख ऐड किया तो ओरिजिनल कॉस्ट मिला.
एडिशन दिया है क्वेश्चन में, देयर वाज 5 लाख, अगर डिडक्शन होता, अगर कोई सेल होता तो वो माइनस करके हमें क्लोजिंग आ जाता। तो यहाँ पे depreciation is their opening given in the question, during the year हमने कैलकुलेट किया, क्लोजिंग कैसे आया 6 लाख plus during the year depreciation which is equal to closing, and opening net block is opening gross block minus opening depreciation, and closing is closing gross block minus closing depreciation is equal to net block. So this one is done, the sum is done. Now let us come to the another small question. Presented below is an extract of secured and unsecured loans of Superstar Limited. तो यहाँ पे दो टाइप के लोन्स दिए हैं, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में वी हैव टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर्स, वी हैव टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर्स, द अमाउंट इज 2,95,002 rupees is the loan, secured loan taken by bank, and then we have secured loan taken by others 3,12,112. Total is coming to 6,07,114. And then we have unsecured loan, that is short term loan from banks, and then other information is given. Other information given is the current maturities of long term loan from bank is 30,000. मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन है बैंक का, उसमें करंट मैच्योरिटीज मीन्स शॉर्ट टर्म नेचर का है 30,000 करंट में, it is going to mature, and the from 2,95,002 rupees का जो लोन है उसमें the current what is going to mature is that we have to pay, which is of short term nature, is 30,000, and the current maturities from other parties, long term loans from other parties, from others, which is 3,12,112, उसमें शॉर्ट टर्म नेचर का है 15,376. जो लॉन्ग टर्म लोन में, लॉन्ग टर्म लोन इज शोन इन द नॉन करंट लाइबिलिटी, बट उसमें जो करंट मैच्योरिटीज होते, जो उसमें जो करंटली मैच्योर होने वाला लाइबिलिटी है, दैट विल बी शोन अंडर द हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। किधर दिखाएंगे? अदर करंट लाइबिलिटीज में। सो देयर वाज नो इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड होगा तो वो भी हम अदर करंट लाइबिलिटीज में बताएंगे। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू शो द एप्रोप्रिएट नोट्स टू अकाउंट, द एप्रोप्रिएट नोट्स टू अकाउंट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो व्हाट वी विल फाइंड आउट, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें ये हेड्स किधर आएगा वो दिखाना है। तो वी हैव टू शो दिस विल कम अंडर, हमें नोट्स टू अकाउंट में बताने बोला है। सी वेयर विल दिस कम, दिस विल कम अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज में we have long term borrowings, I will remove the space, so if what we can do, यहाँ पे तो टोटल दिखाना है, तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में
notes to account में what we will do, long term borrowing लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास है फ्रॉम बैंक्स एंड हमारे पास है फ्रॉम अदर्स. व्हाट इज द अमाउंट गिवन? 2,95,002 एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन फॉर अदर्स. ये दोनों को ऐड करो, कितना होता है? इट इज ऑलरेडी गिवन 6,07,114. इसमें से हम लेस करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे व्हाट इज इट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. कितना है? How much is the current maturities? 30,000 plus 15,376. So ये दोनों को ऐड करेंगे तो how much we will get? ब्रैकेट में लेस करना है 45,376. तो ये माइनस करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिलेगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट है 5,61,738. So this we will write under long term borrowing 5,61,738. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने शॉर्ट टर्म नेचर का कुछ नहीं लिखा. नाउ वी हैव करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसमें हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, कोई डायरेक्टर ने लोन दिया है वो लिखते हैं. एनी शॉर्ट टर्म नेचर का लोन वी शो हियर, विच इज द शॉर्ट टर्म नेचर लोन इन द क्वेश्चन. शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो वो हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखा. फिर हमें लिखना है अदर करंट लाइबिलिटीज. अदर करंट लाइबिलिटीज में जो हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का लेस किया है, देखो, that we will write, that is 45,376. 45,376. This is done. This is done. ये हमारा जो हमें पूछा गया था वो हमने किया. इवन नोट्स टू अकाउंट में हम बता सकते हैं. नोट्स टू अकाउंट में दिस वाज द फर्स्ट नोट. सेकेंड नोट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमने क्या लिखा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वी हैव रिटन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स which is equal to 36,112, and then we have other current liabilities. इसमें हमारे पास क्या है? करंट मैच्योरिटीज. करंट मैच्योरिटीज ऑफ current maturities of long term debt, which is
from bank and others. That is from banks and from other. अमाउंट कितना है? बैंक्स का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, इट इज 30,000 and from others it is how much? 15,376. दोनों को ऐड करते तो इट इज 45,376. सो दिस ऑल्सो इज डन. इसमें हमने बताया कि अगर कोई शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो वो करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाना है. सो नाउ हियर the eighth one, from the following information prepare the relevant notes to accounts. तो यहाँ पे what is there? Bills discounted but not yet matured. मतलब bills have been discounted by the bank but ये bills का ड्यू डेट अभी तक नहीं आया है. मतलब ड्यू डेट में क्या होगा वी आर नॉट श्योर. ड्यू डेट में दो चीज हो सकता है, या तो बिल्स विल बी हॉनर्ड या तो बिल्स विल बी डिसऑनर्ड. So on the due date, two things can happen. या तो bills will be honored. If the bills are honored, bank will get the money from the drawee. If not, then it has to get the money from the drawer. तो जो बिल्स हम लोग डिस्काउंट करते हैं, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, इनको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं. ये क्या है? बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी. दीज आर द कंटिंजेंट लाइबिलिटी. एंड देन अंडर कंटिंजेंट लाइबिलिटी आगे क्या दिया है देखो, 300 लाख का shares है of X Limited of ₹10 each, but only we have paid only ₹8 as investment. मतलब 10 rupees का शेयर है X Limited का, 300 lakh shares we are having, but we have paid only 8 rupees. अभी भी कितना हमें पे करना बाकी है? हाउ मच शेयर्स? इट इज shares are only 8 paid up. Means the company can anytime ask for the remaining 2 rupees which is balance. बट कंपनी ने अभी तक 2 रुपीज कॉल नहीं किया. जितना कॉल किया 8 रुपीज उतना हमने पे किया है. जितना कॉल किया उतना हमने पे किया है. अभी जो कॉल नहीं किया that is partly paid up investments, कंपनी कभी भी वो 2 रुपया कॉल कर सकती है. इस साल में कॉल कर सकती है, नेक्स्ट ईयर में कॉल कर सकती है, उसके नेक्स्ट ईयर में कॉल कर सकती है. कंपनी को जब भी जरूरत है तभी ये 2 रुपया जो पेड अप करना बाकी है, बिकॉज आवर शेयर्स आर ओनली 8 rupees paid up, 2 rupees is still outstanding, which the company can call any time in its lifetime. In the lifetime of the company can call that 2 rupees any time. So ये 2 रुपए को भी हम क्या बोलते हैं? जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. मीन्स वी कॉल इट एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. जितना कंपनी तो रेडी है पे करने के लिए, पर जहाँ पे हमने जिस कंपनी का हमने इन्वेस्ट किया है उन्होंने अभी तक वो 2 रुपया मंगाया नहीं है. तो दीज पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. अगर कंपनी ने कॉल किया वो 2 रुपया ये साल तो हम पे करेंगे, नहीं कॉल किया तो हम नहीं पे करेंगे. नेक्स्ट वन, 6,14% debentures of ₹100 each, ₹80 paid up. ₹80 paid up किया है.
बाकी का 20 रुपीज अभी भी पे करना बाकी है। तो जब भी डिबेंचर का पैसा कंपनी कॉल करेगी तो हम पे करेंगे। ये साल कॉल करेगी तो ये साल पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर कॉल करेगी तो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। मीन्स द कंपनी कैन कॉल दिस, द कंपनी where we have purchased the debenture, they can ask for the money any time in their lifetime. तो वी आर नॉट श्योर यही साल कॉल करेगी या नेक्स्ट ईयर कॉल करेगी या कब कॉल करेगी। तो इस साल जब तक कॉल नहीं करती है तब तक वी विल कॉल इट एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सो वी हैव बीन टोल्ड टू प्रिपेयर द रेलेवेंट नोट। तो इसमें वी विल शो, बिकॉज कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो नोट्स में ही आता है, उसके लिए अलग शेड्यूल नहीं है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में वी विल शो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। इसमें सबसे पहले क्या है, बिल्स discounted, bills discounted but not yet matured। कितना है ये, 5 lakhs। तो इधर लिखेंगे 5 lakhs। फिर इसके बाद what is there after this, what is there, we have uncalled liability on partly paid shares। कितना अनकॉल किया है, इट इज 300 lakh shares of X Limited। कितना पे किया है, ₹8 पेड अप। तो कितना अनपेड है, अनपेड कितना है, 300 lakhs into 2 which becomes how much, अनपेड पोर्शन कितना है, 600 lakhs। 300 लाख शेयर्स है, उसमें 8 रुपीज पेड अप है, तो अनपेड कितना है, 2 रुपीज, जो कंपनी ने ही कॉल नहीं किया, जो कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, uncalled liability on partly paid debenture held as investment। यहाँ पे भी ये हमने कैसे रखा है, held as investment। कितना है, हाउ मच इट इज, 6 लाख शेयर्स है, सॉरी 6 lakhs डिबेंचर्स है, 6 lakhs 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। पर कितना पेड अप है, ₹80 पेड अप। तो अनपेड कितना है, अनपेड है 6 लाख में टू 20 रुपीज, 6 लाख में 20 रुपीज, 80 रुपीज पे किया तो 20 रुपीज अनपेड है। ये कितना होगा, दिस विल बिकम
120 lakhs. So 120 lakhs. So total कितना हो जाएगा? What will be the total of contingent liability? 600, 720, 600 है 725 lakhs. So with this sum is also done. Only contingent liability was given. Only contingent liability was given. So what we will do now, we will go to the next sum. Following is the trial balance of Neelam Electronics Limited as on 31st March 2017. Following is the trial balance of Neelam Electronics Limited as on 31st March 2017. What do we have? We have cash in hand. We have cash in hand, cash at bank. ये तो cash and cash equivalent में आता है. Then we have share capital, which will come in the share capital का notes to account. Then we have debentures. ये तो long term borrowings है debentures. Debentures are long term borrowings. Then what we have? Then we have bills receivable and debtors. ये दो नो सॉरी उससे पहले वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म. इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. फिर हमारे पास बिल रिसीवेबल और डेटर्स हैं. ये दोनों को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. देन हमारे पास क्रेडिटर है. इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर को हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल. देन वी हैव सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी deposit. See in which side we have given the security deposit. Security deposit is in the security deposit. और ये long term बोला है. See security deposit amount is in the asset and it is called long term. तो ये नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बताते हैं, लेकिन क्योंकि इधर ब्रैकेट में दिया है लॉन्ग टर्म तो हम इसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बताएंगे. नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट असेट साइड में है तो सारे डिपॉजिट्स को हम असेट साइड में है तो लोन्स एंड एडवांसेस में बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो इनको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बताएंगे. Then we have profit and loss account. This is reserve and surplus. Reserve and surplus. Then we have security premium. ये भी reserve and surplus है. Then we have interest on debenture, accrued and due. तो अदर करंट लाइबिलिटीज में बताना पड़ेगा. कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता है तो हम अदर करंट लाइबिलिटी में बताते हैं. गुडविल इज इंटैंजिबल असेट. Goodwill is intangible asset. Then we have land and building. Cost है 5 lakh and WDV है 3,80,000. जो तो डिफरेंस है दोनों का वो डेप्रीसिएशन रहेगा. प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख है, 10 कम हो गया. कॉस्ट है 10 lakhs और WDV है 6 lakh. तो जो डिफरेंस है 4 लाख का दैट विल बी डेप्रीसिएशन. सॉरी हाँ 10 लाख का 10 लाख से 6 लाख हो गया तो जो डिफरेंस है 4 लाख का दैट इज डेप्रीसिएशन. फर्नीचर 1,60,000 है. फर्नीचर इज 1,60,000 बट यहाँ पे दिया है 90,000. जो डिफरेंस है दैट विल बी डेप्रीसिएशन. प्रोविजन फॉर टैक्स इज short term provision. Provision for tax is short term provision. Then advance tax है. Normally हम क्या करेंगे? Provision from for tax में से
जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स दोनों दिया रहेगा तो हम प्रोविजन में से हमने जितना एडवांस में टैक्स पे किया वो माइनस करेंगे। 2,41,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे। एडवांस टैक्स कैन ऑल्सो बी शोन अंडर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बताया एडवांस टैक्स तो भी करेक्ट है, बट व्हेनेवर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स बोथ आर गिवन, हम प्रोविजन फॉर टैक्स में से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। देन वी हैव बिल्स पेएबल। इस ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर और बिल पेएबल को हम ऐड करके लिखते हैं ट्रेड पेएबल। जनरल रिजर्व इज रिजर्व एंड सरप्लस। स्टॉक इन ट्रेड is inventory. Capital reserve is reserve and surplus. Then the question says the authorized share capital of the company was rupees 60 lakhs. Was rupees how much? 60 lakhs divided into 6 lakh shares of rupees 10 each. फिर डेटर में डेटर सन्ड्री डेटर which are all unsecured, डेटा सब अनसिक्योर्ड है, कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर नहीं दिया। एंड कंसिडर गुड, एंड वी कंसिडर ऑल द डेटर्स will be able to recover the money, include 1,80,000 due for more than 6 month। तो हम डेटर में हमेशा दो क्लासिफिकेशन अगर दिया है टू ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ एंड अदर्स, मतलब हमारे पास कितने डेटर है। सी हमारे पास कितने डेटर है, जिसको हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास कितने डेटर है विच आर, जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा टाइम तक पैसे नहीं दिया। तो दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। टोटल डेटर इज हाउ मच? टोटल डेटर इज 11 लाख गिवन इन द क्वेश्चन। टोटल डेटर है 11 लाख। 11 लाख में कितने डेटर है जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिया। सो हमारे पास 11 लाख में 1,80,000 के डेटर है जिन्होंने मोर देन 6 मंथ्स हो गए बट पैसे नहीं दिए। तो इट इज 1,80,000 फ्रॉम 11 लाख। 1,80,000 के डेटर है जिन्होंने 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया पर पैसे नहीं दिए। तो हम डेटर को कैसे दिखाएंगे? मोर देन 6 मंथ, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ एंड अदर्स। तो 11 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमें अदर डेटर मिलेगा जिनका लेस देन 6 मंथ का टाइम है और अभी तक पैसे नहीं दिए। सो वी वुड लाइक टू नो दैट हाउ मेनी डेटर्स आर देयर who have not given the money but there it is more than 6 months and they have not given the money. Then they say investment represents 5,000 equity shares in X Limited of rupees 10 each, rupees 4 per share called and paid up. तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का 20,000, वो क्या है? 5,000 हमने एक्स लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स खरीदा है 10 रुपीज का, बट कंपनी ने अभी तक सिर्फ 4 रुपीज ही कॉल किया है। तो 6 रुपीज का क्या? 6 रुपीज या तो ये साल में कॉल करेंगे या तो नेक्स्ट ईयर में कॉल करेंगे या तो उसके नेक्स्ट ईयर में कॉल करेंगे। तो जो 6 रुपीज है दैट इज कॉल्ड एज 4 रुपीज तो पे किया है, बाकी का 6 रुपीज अभी हमने किया। जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स होता है उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल discounted with bank not matured till the balance sheet date amounted to rupees 15,000 अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। ये भी हमने अभी किया।
वी हैव डिस्काउंटेड द बिल्स रिसीवेबल आर डिस्काउंटेड विद द बैंक, बट अभी तक मेच्योरिटी नहीं आया है। मेच्योरिटी नहीं आया है तो हम बोल नहीं सकते कि इसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 6 रुपया पे किया है, बाकी 6 रुपया अभी भी कॉल करना बाकी है। और बिल्स रिसीवेबल का 15,000, ये दोनों कंटीजेंट लाइबिलिटी, और कंटीजेंट लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। कंटीजेंट लाइबिलिटी हम नोट्स टू बैलेंस शीट में दिखाते हैं। वी शो अंडर नोट टू बैलेंस शीट, एंड उसमें हम बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी are never shown are never shown in the balance sheet. They are shown under note to balance sheet. उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी को बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट भी नहीं, नोट्स टू बैलेंस शीट। यहाँ अकाउंट बोला तो भी ठीक है, बट नोट्स टू बैलेंस शीट वी नेवर शो इट एज in the balance sheet. Contingent liability are liability which may occur or may not occur. Means इसका पैसा पे करना भी पड़ सकता है, नहीं भी पे करना पड़ सकता है. So what they tell us, you are required to prepare balance sheet of Neelam Electronics Limited as on 31st March 2017 as per the provision of Companies Act. So here, what is the name of the company? Neelam Electronics Limited. Neelam Electronics Limited. What we are supposed to prepare? Balance sheet as on, डेट दिया है कब का? हाँ, ये 31st मार्च। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017. Particular note to account and amount. Particulars, notes to accounts and amount. So particulars, notes to account and rupees. Note to account and rupees. So what we will do here, सबसे पहले इसको हम हमारे बैलेंस शीट साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में स्मॉल ए, ये शेयर होल्डर फंड को हम कैपिटल ए बोल सकते हैं, और इसमें स्मॉल ए में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज़ आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. दिस इज द फॉर्मेट वी आर डूइंग फ्रॉम अवर लास्ट ईयर. तो यहाँ पे हम बोलते हैं नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2. तो वी विल गो टू द नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स में पहला वाला नोट है शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल में हमें क्वेश्चन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिया है. So we will write authorized share capital is how much? 6 lakh. Authorized share capital कितना है? 6 lakh. Equity shares पहले पॉइंट में दिया है, देखो 60 लाख का ऑथराइज कैपिटल है. 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, which is equal to 60 lakhs. फिर हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है?
How much is our paid up share capital? It is 18,40,000. See, शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है? 18,40,000. सो यहाँ पे नीचे लिखेंगे पेड अप, कॉल्ड अप, पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं. सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में? इट इज वन शेयर इज ऑफ 10 रुपीज. सो कितना हो जाएगा एक शेयर 10? इसको डिवाइड करेंगे तो 18,40,000 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1,84,000 शेयर्स है. 1,84,000 इक्विटी shares of rupees 10 each, which is equal to 18,40,000. सो यहाँ पे कभी भी ऑथराइज कैपिटल को तो हम टोटलिंग में काउंट नहीं करते. सो टोटल लिखते वक्त ओनली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल का टोटल आएगा 18,40,000. So we will write in the share capital 18,40,000. Next, what is the note? Next to note is of reserves and surplus. Reserves and surplus. तो reserves and surplus में कौन सा रिजर्व है? जस्ट गो एंड चेक इन द क्वेश्चन. कौन सा रिजर्व दिया है क्वेश्चन में? पीएनएल अकाउंट सबसे लास्ट में लिखना है. उसके अलावा क्या दिया है? 1,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम. See what is given? Security premium is a reserve. Then what we have? General reserve is a reserve. Then what we have? Capital reserve is a reserve. And we have प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. एंड वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वी विल गो टू द क्वेश्चन. वी हैव व्हाट ऑल वी हैव? वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम. वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम. We have general reserve. We have capital reserve. And we have surplus. सरप्लस बोलते हैं पीएनएल अकाउंट को जिसमें हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सरप्लस मतलब what is surplus? Profit and loss account. Profit and loss account. So सबका अमाउंट क्या दिया? Let us see. Security premium is 1,80,000. Profit and loss account is 5,80,000. General reserve 2 lakh. Capital reserve is 20,000. So let us write down the amount. Security premium is 1,80,000. General reserve is 2 lakh given in the question. Capital reserve given in the question is 20,000 and profit and loss is 5,80,000. ये सबको टोटल करेंगे तो how much do we get? ये सबको टोटल करेंगे तो how much do we get? We get 9,80,000. So हम लिखेंगे इधर 9,80,000. So we have got shareholders fund. Now what we will do? Now capital B हम लिखेंगे non
current liabilities. Non-current liabilities. Under non-current liabilities, we have long-term borrowings. Long-term borrowings. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या दिया है क्वेश्चन में? लेट अस सी. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक तो दिखा डिबेंचर्स है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक तो डिबेंचर्स मिला 6 लाख. इसके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या? बैंक लोन, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, कुछ नहीं है. सो एक ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. तो हम लोग सिर्फ एक ही है तो नोट नहीं बनाएंगे. इधर वी विल राइट व्हाट इज इट. 9% debentures, 6 lakh. The amount is 6 lakh. इसके बाद we will go to current liability. इसके बाद we will go to current liability. So C current liability. C current liabilities. करंट लाइबिलिटीज में हम लोग सबसे पहले देखो कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मीन्स कोई डायरेक्टर से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी टाइप ऑफ शॉर्ट लोन टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर. बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखते हैं. उसके अलावा और कोई लोन है? लेट अस सी एनी अदर लोन इज देयर. नो, नथिंग इज देयर. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये पे एक ही चीज है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट. कितना अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का? 4 lakhs. बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन इज 4 lakh. इसके बाद वी विल राइट ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स के लिए तो नोट में जाना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिटर भी है क्वेश्चन में और बिल्स पेबल भी है. सो थर्ड वन वी विल गो टू द नोट. ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल्स दो चीज लिखना है इसमें, क्रेडिटर्स एंड bills payable. creditors and bills payable. तो क्या अमाउंट है क्रेडिटर एंड बिल पेबल का? क्रेडिटर इज 4,80,000 and bills payable is 60,000 and bills payable is 60,000. Bills payable is 60,000. So I will write here creditor is how much? Creditor is 4,80,000 and bills payable is 60,000. दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 5,40,000. So we'll write trade payable is 5,40,000. तो इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अदर करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में 4 ही हेड्स है. करंट लाइबिलिटी में 4 ही हेड्स है. एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसमें हम कोई भी शॉर्ट टर्म नेचर का लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट फीस ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड लिखते हैं. ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल पेबल लिखते हैं. अदर करंट लाइबिलिटी में कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐसा कुछ रहेगा तो वी विल शो इन द करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी. एंड वी हैव अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ऐसा कुछ आएगा. सो अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है? हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? क्वेश्चन में देखो, डू वी हैव एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Interest on debenture, we have
interest on debenture. So interest on debenture is there 13,500. So only one is there. We have only one. तो इधर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिर्फ बिकॉज एक ही है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट क्या है या तो इधर लिख सकते हैं accrued interest on debenture. How much is the amount? 13,500. 13,500. Then we have the short term provision. इसको बोलते हैं short term provision. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमारे पास क्या है, लेट अस सी. शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट बनाना पड़ेगा शायद, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है 2,41,000 एंड उसमें से हम लेस करते एडवांस टैक्स विच इज 2 लाख. हम लोग का करंट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स है 2,41,000 और पहले से हमने गवर्नमेंट को 2 लाख का टैक्स पे किया है, 2 लाख का टैक्स पे किया है. तो यहाँ पे what we will do, we will write short term, note number 4, short term provisions. तो short term provision में we will write provision for tax. कितना अमाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने अभी देखा 2,41,000. इसमें से लेस करेंगे एडवांस टैक्स, इसमें से लेस करेंगे एडवांस टैक्स विच इज 2 लाख. एडवांस टैक्स इज 2 लाख. तो लेस करने के बाद हमें मिलेगा 41,000. तो लेस करने के बाद वी गेट 41,000. So 41,000 we will write under short term provision. तो ये कौन सा नोट है, नोट नंबर 4. we will write here 41,000 short term provision. After writing short term provision, this total we have to take, we will get the total of liability and then assets. Second one is asset. तो asset में क्या रहेगा, asset में हमारे पास दो रहेगा, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट. नॉन करंट असेट्स, तो नॉन करंट असेट को हम बोलेंगे कैपिटल ए एंड इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें भी शो एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें वी शो 2 थिंग्स. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में tangible and intangible assets. So we will show here tangible and intangible asset. So tangible assets, and here intangible assets. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता तो उसके नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखते, बट इन अवर सम वी हैव सीन देयर इज नो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस और इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट. से दोनों भी नहीं है, होता तो इसके नीचे हम लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसके नीचे वी विल राइट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बट ये ज़्यादातर सम्स में नहीं रहता. और लास्ट वन होता है इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट. तो ये दोनों क्वेश्चन में नहीं है तो लिखने का भी ज़रूरत नहीं है. लास्ट वन क्या होता है, इंटैंजिबल
assets under development, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है बस वही लिखना है। तो हमारे पास टैंजिबल असेट्स है तो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। वी हैव गुडविल, इंटेंजिबल असेट सिर्फ एक ही है। टैंजिबल असेट में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सो वी विल गो टू द note number 5. We will go to the note number 5 and we will write tangible assets. So fifth one, tangible assets. Tangible assets में we have what all assets we have? Land and building. लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 5 लाख एंड WDV है 3,80,000. लैंड एंड बिल्डिंग इज 5 लाख एंड इसमें लेस डेप्रीसिएशन करना है। क्वेश्चन में WDV दिया है 3,80,000. सो डेप्रीसिएशन कितना कम हुआ रहेगा? डेप्रीसिएशन कितना कम हुआ रहेगा अगर WDV इज 3,80,000? 5 लाख में से 3,80,000 माइनस करो, यू विल कम टू नो द डेप्रीसिएशन. सो डेप्रीसिएशन इज 1,20,000. इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद वी हैव plant and machinery. What is the plant and machinery amount? Plant and machinery का amount है 10 lakh and WDV है 6 lakh. तो we will write here plant and machinery का 10 lakhs less depreciation. WDV कितना दिया है? 6 लाख. ये क्वेश्चन में दिया है. कितना माइनस किया रहेगा 6 लाख आने के लिए? 4 लाख माइनस किया रहेगा. तो वी हैव गॉट 6 लाख. इसके बाद वी हैव फर्नीचर. फर्नीचर का अमाउंट क्या है? लेट अस सी. फर्नीचर कॉस्ट है 1,60,000 एंड WDV है 90,000. कॉस्ट है 1,60,000 एंड WDV है 90,000. सो वी विल राइट हियर 1,60,000. इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन और यहाँ पे आंसर दिया है 90,000. तो यहाँ कितना माइनस करने पे 90,000 आया रहेगा? कितना माइनस किया रहेगा 1,60,000 में? दैट वी हैव गॉट 90,000. 70,000 माइनस किया रहेगा. सो 70,000 इधर लिखा तो हमें मिला 90,000. ये सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल ऑफ टैंजिबल असेट्स 3,80,000, 6 लाख एंड 90,000. सबको ऐड करने पे वी गेट 10,70,000. वी गेट 10,70,000. सो वी विल राइट हियर हमारा टैंजिबल असेट है 10,70,000. इसके बाद इंटैंजिबल असेट तो क्वेश्चन में दिया है, इट इज ओनली 1. इंटैंजिबल असेट तो सिर्फ एक ही दिया है 1,30,000 गुडविल. इंटैंजिबल असेट गिवन इज ओनली 1, दैट इज गुडविल. सो व्हाट वी विल डू 1,30,000. सो वी विल गो टू द क्वेश्चन. यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं गुडविल. तो ब्रैकेट में लिखा सिर्फ एक ही है, नोट बनाने का जरूरत नहीं है. 1,30,000. ये दोनों तो है ही नहीं, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है. दोनों क्वेश्चन में नहीं है, ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ना इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, दोनों नहीं है. तो वी विल
राइट नील, या तो ये दोनों, ये तुम लोग को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने बनाया, नहीं तो कोई भी समय ही नहीं है तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट. नाउ वी वांट, इसके बाद वी वांट नॉन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट there or not. Let us see. Non-current investment, long-term investment, 20,000. It is there in the question. So we will write here 20,000. फिर इसके बाद क्वेश्चन में एक और लॉन्ग टर्म नेचर का है. लॉन्ग भी हमने रीड किया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड advances. Long term loans and advances is there in the question. Long term loans and advances में क्या है? Security deposit long term 8,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म. तो ये हम लोग नोट में बना सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, एक ही ओनली वन आइटम इज देयर, सिक्योरिटी डिपॉजिट is there and the amount is 8,000. So only one thing. इसके बाद we will write capital B current assets. करंट असेट में सबसे पहले वी राइट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब में तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. देन क्या है ये क्वेश्चन में, इसके बाद हम लिखते हैं इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज इज देयर इन द क्वेश्चन. लेट अस सी. इन्वेंट्रीज है 16,98,900. So it is 16,98,900. 16,98,900. So इसके बाद आफ्टर इन्वेंट्रीज वी हैव ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, trade receivable is there. So trade receivable के लिए let us go to the note because debtor और bill receivable दोनों को ऐड करके मिलता है ये. So note में जाते हैं. So 6:1 trade receivables. इसमें दो चीज क्या आएगा, debtors and bills receivable. Debtors and bills receivable. So how much is debtor and bill receivable? Debtor is 2,80,000. Sorry, bill debtor is 11 lakh and bill receivable is 2,80,000. 11 lakh and 2,80,000. So we'll write here 11 lakh and 2,80,000. And we have 2,80,000. दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 13,80,000. सो हमारा डेटर एंड बिल रिसीवेबल इज 13,80,000. लेकिन डेटर में कुछ बाइफोकेशन करने के लिए बोला गया, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया. देखो डेटर में दे हैव टोल्ड दैट वी हैव टू शो अ बाइफोकेशन ऑफ all secured, all are unsecured considered good और due for more than 6 month. तो ये इंफॉर्मेशन है, तो इसके हिसाब से हमें डेटर को क्लासीफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे डेटर में डायरेक्टली नहीं लिख सकती हूँ, मेरे को बाइफोकेशन करके बताना पड़ेगा. डेटर्स क्या बाइफोकेशन करना है इसमें, डेटर्स में ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल वी विल राइट क्या दिया है, अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड. अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड. इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, दो चीज दिया है, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन
6 months, डेटर में बोला गया कितने मोर देन 6 months है, एंड रिमेनिंग को बोलेंगे अदर्स। तो मोर देन 6 month का क्वेश्चन में दिया है, इट इज 1,80,000। सो अदर्स कितना रहेगा, अदर्स कितना रहेगा, अदर्स विल बी 11 lakh, total debtor is 11 lakh minus 1,80,000, तो कितना बचता है, 11 लाख में 1,80,000 माइनस किया तो we will get 9,20,000, we will get 9,20,000। जस्ट डेटर को ऐसे क्लासिफाई करना है और कुछ नहीं, डेटर को सिर्फ क्लासिफाई करना है। 11 लाख को दो मोर देन 6 month एंड अदर्स, सिर्फ वो बाइफोकेशन बताना है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में डेटा 11 लाख के दिया है, बट इन द एडजस्टमेंट दे हैव सेड दैट ऑल द डेटर्स आर अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, वो हमने ब्रैकेट में लिखा, एंड दे हैव सेड ड्यू फॉर या आउटस्टैंडिंग फॉर, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना है तो ड्यू फॉर मोर देन 6 month भी लिख सकते हैं, एंड अदर्स, अदर्स मतलब रिमेनिंग डेटर विच आर ड्यू फॉर लेस देन 6 month, वो माइनस करने पे आ जाएगा। तो वी गॉट 13,80,000 टोटल ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे लिखेंगे 13,80,000। इसके बाद वी राइट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास दो है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो दोनों लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वाला नोट बनाएंगे, एक से ज़्यादा चीज़ है तो वी विल हैव टू पुट इट इन द नोट। तो वी विल राइट द 7th नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, इसमें हमें दो चीज़ दिखाना पड़ेगा, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। What is the amount of cash in hand and cash in bank? Cash in hand is 39,000, cash in bank is 68,600. So we will write here 39,000, and next one is 68,600, 68,600, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, दोनों को ऐड करो, you will get 1,07,600। so we'll write here total लिखना है 1,07,600, 1,07,600, and with this let us see anything else also is there, कुछ हमने मिस आउट किया या पूरा हो गया, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है और कोई फिक्टिशियस असेट नहीं है। अगर कोई फिक्टिशियस असेट रहेगा तो उसको अदर करंट असेट में शो करेंगे, और अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है जैसे स्टाफ एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, टेंडर डिपॉजिट, बट ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म नेचर का इसलिए इधर लिखा। अगर सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता तो हम लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखते। फिर टेंडर डिपॉजिट नहीं है, देन टेंडर डिपॉजिट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, टेंडर डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कोई फिक्टिशियस असेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिस्काउंट ऑन इशू, तो उसको अदर करंट असेट बोलते हैं। हम अदर करंट असेट में भी फिक्टिशियस असेट को दिखा सकते हैं या अदर नॉन करंट असेट में भी दिखा सकते हैं। सो विद दिस let us see anything else is left out। हमने सब कुछ दिखा दिया, कुछ भी बचा है, anything left? no, everything is been noted down। so हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, अभी हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। so just take the total of this many, what you are getting, 18,40,000
18,40,000, 9,80,000, 6 lakh, 4 lakh, 5 lakh 40, 13,500, 41,000. We get 44,000, 44 lakh 14,500. And same way in the asset side, we have 10 lakh 70,000, 1 lakh 30,000, 20,000, 8,000, 16 lakh 98,900, 13 lakh 80,000, and 1 lakh 7,600. We get 44 lakh 14,500. With this sum is done. With this sum is done. The following is the trial balance of Radhika Limited as on 31st March 2017. The following is the trial balance of Radhika Limited as on 31st March 2017. So debit balances are given and credit balances are given. डेबिट बैलेंस में असेट रहेगा, क्रेडिट बैलेंस में लाइबिलिटी रहेगा. तो यहाँ पे बिकॉज इट्स अ सम ऑफ ओनली बैलेंस शीट, सो डेबिट साइड में असेट रहेगा, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी. तो स्टॉक मीन्स यहाँ पे स्टॉक दिया, लास्ट डे का स्टॉक है, दिस इज इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक. फिर फिक्स असेट दिया है, नेट ब्लॉक डायरेक्टली हमें फिक्स असेट दिया है. देन वी हैव डेटर unsecured and good 8 lakh. Then we have given staff advance. Staff advance matlab short term loans and advances. Cash on hand, cash bank balance is cash and cash equivalent. Share issue expenses. Share issue expenses means fictitious asset and they have said इसको आफ्टर 12 मंथ राइट ऑफ करना है. इसको हम कहाँ पे लिख सकते हैं? अदर नॉन करंट एसेट में लिख सकते हैं या अदर करंट एसेट में लिख सकते हैं. सो लेट अस सी वेयर वी विल राइट दिस. एंड इसके बाद व्हाट वी हैव बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल इज what you say, bills receivable is trade receivable. इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है. ये हमारे पास ये असेट साइड हो गया. अब लाइबिलिटी साइड में वी हैव शेयर कैपिटल. जनरल रिजर्व विल कम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. Then we have loan from Bank of Baroda. This is long-term borrowing. Then we have provision for taxation, short-term provision, profit for the year and opening balance. दोनों दिया surplus का. ओपनिंग बैलेंस ये 31 मार्च 2017 है, बट प्रॉफिट इज ऑफ 1/4/2016. मतलब पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस. एंड हम लोग को क्या करना है, पीएनएल अकाउंट में से हमें ऐड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर which is given. And then we have short term loans. Short term loans will come under short term borrowings. Short term loans will come under short term borrowings. Creditor is trade payable. And we have unclaimed dividend. Unclaimed dividend will come under other current liabilities. मतलब it is unclaimed. पे करना चाहिए पर सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, इसमें तो ये नहीं आ सकता. ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल. बिल पेबल इज ट्रेड पेबल. देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें हम क्या लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड. तो बचा क्या, अदर करंट लाइबिलिटी. तो ये अनक्लेम्ड डिविडेंड हम कहाँ पे लिखे कि अदर करंट लाइबिलिटी में. Then we have transfer to general reserve appropriation. Directors recommend 6% dividend. Proposed dividend है, share capital का 6% निकालना है, तो we will get proposed dividend. Out of the debtors due for more than 6 months was 1,04,000. तो total debtor 8 lakh में more than 6 month का debtor कितना है, 1,04,000. Rest will be others, that is less than 6 months.
Then we have creditors included goods for goods 2,10,000 remaining for expense. तो टोटल क्रेडिटर 2,80,000 में क्रेडिटर फॉर गुड्स है 2,10,000 और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस रहेगा 2,80,000 माइनस 2,10,000, दैट इज 70,000 विल बी क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. लोन फ्रॉम बड़ौदा, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा इज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक. तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लिख सकते हैं सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक. देन मार्केट वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट का 1,70,000 और फेस वैल्यू दिया है 1,60,000. तो इन्वेस्टमेंट के सामने हमें लिखना पड़ेगा मार्केट वैल्यू 1,70,000, फेस वैल्यू 1,60,000. Then we have ignore previous year figures and corporate dividend tax. This is just the information. हमें क्या करना है, राधिका लिमिटेड का हमें क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. सो बैलेंस शीट as on 31st March 2017 given in the question. 31st March 2017 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. नाउ प्रिपेयर द कॉलम्स, 3 कॉलम्स. ये अमाउंट का, ये नोट्स टू अकाउंट का, पहला वाला पर्टिकुलर्स. सो पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट एंड रुपीस. सो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इसमें कैपिटल ए आता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में स्मॉल ए आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड surplus. So this is our note number 1 and note number 2. Let us go to notes to accounts. Notes to accounts. So notes to accounts में पहला वाला नोट है शेयर कैपिटल. नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल. लेट अस सी शेयर कैपिटल कितना दिया है. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 40 lakhs. सो विल राइट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. अमाउंट है 40 lakhs. इसमें से अगर हम 2 0 कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 40 लाख डिवाइड बाय 100, वी विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज हाउ मच, 40,000. सो वी कैन राइट हियर 40 lakhs. इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिला, एक शेयर 100 का है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 0 कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 40,000. And second one is reserves and surplus. We have to see the credit side. Credit side में सब रिजर्व रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा. तो जनरल रिजर्व है 1,40,000. सिर्फ एक ही रिजर्व है जनरल रिजर्व. फिर हमारे पास है जनरल रिजर्व में भी एडजस्टमेंट है बिकॉज ट्रांसफर इज देयर. सो व्हाट वी विल डू, एंड वी हैव surplus, profit and loss account, opening balance and profit, net profit for the year. 2 lakh and 5,40,000. 2 lakh and 5,40,000. So यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कितना मिला अमाउंट, जनरल रिजर्व दिया है 1,40,000. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सरप्लस. सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस दिया है क्वेश्चन में.
Opening balance is how much? Opening balance is 2 lakh. So we will write opening balance 2 lakhs. इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,40,000. तो हम लिखेंगे 5,40,000. और इस ये दोनों को ऐड करते तो ये हो जाता है 7,40,000. इसमें से लेस करना है एप्रोप्रिएशन. इसमें से लेस करना है एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन का क्या एग्जाम्पल्स है? इंट्रीम डिविडेंड. मतलब जब हम ओनर्स को कुछ भी देते हैं तो दैट इज एप्रोप्रिएशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू ओनर्स. ओनर्स को डिविडेंड दिया, इंट्रीम डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन. एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? proposed dividend is appropriation. Transfer to reserve is appropriation. तो appropriation में 3 चीज आता है: transfer to reserve, प्रपोज डिविडेंड एंड इंट्रीम डिविडेंड. तो कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर किया था एप्रोप्रिएशन. इंट्रीम डिविडेंड इन बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इट इज एप्रोप्रिएशन. एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज प्रपोज डिविडेंड इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या एप्रोप्रिएशन है हमारे पास? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. कितना ट्रांसफर करना है? 7 लाख में से 1 लाख. और एक एप्रोप्रिएशन है क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड. कितना प्रपोज डिविडेंड है? कितना परसेंट डिविडेंड देना है? प्रपोज डिविडेंड है 6%. तो किसका 6%? शेयर कैपिटल का 6%. सो बोर्ड टेक योर कैलसी. 40 lakhs का 6% निकालो. कितना होता है? 40 lakhs का 6%. 40 lakhs का 6% is how much? Are you getting that? 40 lakh का 6%. How much you are getting? 40 lakhs का 6%. Is it 2,40,000? 40 का 6%. इट इज 2,40,000. तो इधर लिखेंगे 2,40,000. सो 2,40,000. सो दोनों को का दूसरा सो यहाँ पे वो जो भी दोनों को ऐड करो. दोनों को ऐड करो. तो सॉरी ये दोनों को लेस करना है. तो अपने पास कितना प्रॉफिट बचेगा? ये दोनों को लेस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा 7,40,000 में 3,40,000 चला गया. 7,40,000 में 3,40,000 चला गया. तो वी आर लेफ्ट विथ 4 lakhs. वी आर लेफ्ट विथ 4 lakhs. एंड यहाँ पे इधर बाजू में लिखते हैं 4 lakhs. एंड यहाँ पे इधर एड ट्रांसफर. कितना ट्रांसफर किया है? 1 लाख. सो इधर जनरल रिजर्व में पैसा आया तो दिस बिकम्स 2,40,000.
6,40,000, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 6,40,000, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 6,40,000. सो आई विल राइट हियर 6,40,000. So our this one is 6,40,000. See, one thing, see as per the प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोला तो गया है दैट नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स में प्रपोज डिविडेंड इज देयर, बट प्रपोज डिविडेंड के लिए दे से आई जस्ट सॉ कि प्रपोज डिविडेंड के लिए हम लोग है ना एज पर द नोटिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से हमें क्या करना है, ये हम आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी एकदम इम्पॉर्टेंट है. हमें प्रपोज डिविडेंड सिर्फ नोट्स टू अकाउंट, नोट्स ऑफ बैलेंस शीट में दिखाना है कि इतना प्रपोज डिविडेंड है 2,40,000, बट उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देना है. एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द फाइनल अकाउंट हमें क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड अगर रहेगा तो उसका इफेक्ट नहीं देना है, उसका इफेक्ट नहीं देना है, जस्ट नोट टू अकाउंट में बताना है कि प्रपोज डिविडेंड कितना है, उसको अलग से इफेक्ट देने का ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग ये 7,40,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 6,40,000, और ये दोनों का टोटल हो जाएगा 8,80,000. प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट नहीं देना है एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 16-17 से प्रपोज डिविडेंड का हम लोग इफेक्ट नहीं देंगे. हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उसको नोट्स टू बैलेंस शीट में नीचे बताएंगे दैट प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट इतना है, दैट्स इट. सिर्फ इतना इफेक्ट देना और कुछ भी नहीं. नहीं तो डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन, बट हम लोग एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट वी शुड नॉट शो इट इन द एप्रोप्रिएशन. इंटरिम डिविडेंड रहेगा तो वी विल शो. इसके बाद व्हाट इज देयर, ये इक्विटीज हो गया. अभी कैपिटल बी, नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देखो कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है क्या, कोई डिबेंचर, कोई बैंक लोन. लाइबिलिटी साइड में देखो, इज देयर एनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग? यस, वी हैव अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा विच इज सेक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक. लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा सेक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में जाते, ओनली वन इज देयर, बट वो इंफॉर्मेशन बताया ना सेक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, उसके लिए वी विल प्रिपेयर दिस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा. what is it? It is, ये तो इधर नीचे लिखेंगे secured against stock. Where is it given? It is given in the additional information that loan from Bank of Baroda is secured against stock. So secured against stock, what is the amount of the loan? लोन का अमाउंट क्या है, 6 लाख. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख. यहाँ पे भी वी विल राइट
6 लाख। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद क्या आते हैं, करंट लाइबिलिटी। तो वी विल राइट कैपिटल सी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में वी विल राइट सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म लोन है क्या? जस्ट सी इन द क्वेश्चन, डू वी हैव एनी शॉर्ट टर्म लोन? यस, शॉर्ट टर्म लोन है 1 लाख का, शॉर्ट टर्म लोन है 1 लाख का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शॉर्ट टर्म लोन है 1 लाख। इसके बाद व्हाट वी विल राइट, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में ये थर्ड है, ट्रेड पेबल्स के लिए भी एक नोट बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर्स इंक्लूडेड गुड्स ऑफ 2,10,000 एंड रिमेनिंग आर फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट है 2,80,000, तो उसको बाइफोकेशन करना पड़ेगा। फोर्थ वन, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स है, उसमें बोला है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। क्रेडिटर फॉर गुड्स कितना है, 2,10,000 गिवन इन द क्वेश्चन, एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस क्या है, 2,80,000 इज द टोटल क्रेडिटर, उसमें से माइनस करना है 2,10,000। तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस इज हाउ मच, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस इज 70,000, दोनों का टोटल है 2,80,000। सो ट्रेड पेबल मिल गया 2,80,000 से। बाइफोकेशन बताना था, कितना गुड्स के लिए है, कितना एक्सपेंसेस के लिए है। क्रेडिटर्स के बाद हम दिखाते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या है, कोई आउट्स हमारे पास है, ये लाइबिलिटी साइड में ही देखना है। ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, सब कुछ लिख लिया। क्या बचा इधर, अनक्लेम्ड डिविडेंड। सो अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करना चाहते हैं, लेकिन दिस शेयर होल्डर हैव नॉट क्लेम द डिविडेंड 10,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। और लास्ट वन इन द लाइबिलिटी साइड इज शॉर्ट टर्म provisions, short term provisions which is how much, short term provision में एक ही short term provision दिया है, that is provision for tax। तो और advance tax भी नहीं है क्वेश्चन में, so provision for tax amount, provision for tax, what is the amount for provision for tax is 22,000, 22,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 22,000, फिर वी विल टेक द टोटल, तो लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड वन इज असेट्स। असेट में हम कौन सा बाइफोक लिखेंगे, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में स्मॉल ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे वी विल राइट tangible assets and in second one intangible assets। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल असेट्स अंडर प्रोडक्शन, अंडर डेवलपमेंट, वो कुछ तो है नहीं, तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। असेट साइड में देखो फिक्स से डायरेक्टली दिया है 24,70,000। सो टैंजिबल असेट में लिखेंगे
टैंजिबल एसेट में लिखेंगे ब्रैकेट में नेट ब्लॉक, क्वेश्चन में दिया है 24,70,000। इंटैंजिबल एसेट्स है क्या? लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन, इज देयर एनी इंटैंजिबल एसेट? इंटैंजिबल एसेट इज देयर? कोई इंटैंजिबल एसेट है? नहीं है, तो वी विल हैव टू राइट इट एज नील। So, इसके बाद we will write the non-current investment, non-current investment. तो non-current investment में क्वेश्चन में is there any long-term investment? क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट है? यस, इट कॉस्ट 1,50,000 और इसका मार्केट वैल्यू दिया है 1,78,000 और फेस वैल्यू दिया है 1,60,000। सो विल राइट हियर, में यहीं पे दिखाएंगे मार्केट वैल्यू 1,78,000 and face value 1,60,000। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इधर लिखेंगे 1,50,000 गिवन इन द क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू 1,78,000, फेस वैल्यू 1,68,000 और कॉस्ट तो 1,50,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है, सो हमने वो लिख लिया। फेस वैल्यू, सो डन। नाउ इसके बाद सी अदर नॉन करंट असेट, इसमें हम फिक्टिशियस असेट लिखेंगे। इज देयर एनी फिक्टिशियस असेट? ये देखो, आफ्टर अमोर्टाइजेबल आफ्टर 12 मंथ्स, इसको कब राइट ऑफ करना है? 12 महीने के बाद। अमोर्टाइजेबल मतलब राइट ऑफ करना आफ्टर 12 मंथ्स। तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो इसको हम नॉन करंट असेट में डालेंगे। दैट इज 53,200। 1 मिनट, ये नीचे एक नीचे आना चाहिए 53। इसमें अगर दिखाना है तो वी कैन राइट शेयर इशू expenses amortizable after 12 months दिया है क्वेश्चन में। इसके बाद वी विल गो टू बी करंट असेट्स। इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्या लिख सकते हैं? तो पहले इन्वेंट्रीज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन 10 lakhs। विल राइट हियर गिवन इट इज 10 lakhs। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 10 lakhs। इन्वेंट्री के बाद हमें लिखना है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का बाइफोकेशन दिया है, तो हमें यहाँ पे लिखना है ट्रेड रिसीवेबल में कुछ दिया है डेटर का बाइफोकेशन। लेट अस सी
ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज इट गिवन, इट इज गिवन दैट द डेटर इज अनसिक्योर्ड एंड गुड। सो हमें यहाँ पे लिखना है अनसिक्योर्ड एंड गुड। इसमें लिखना है ड्यू और आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months। कितना अमाउंट है, मोर देन 6 months कितना आउटस्टैंडिंग है, तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है 1,04,000। सो इट इज हाउ मच, 1,04,000। एंड उसके बाद लिखते हैं अदर्स। अदर्स में क्या करना है, टोटल डेटर में, टोटल डेटर का अमाउंट क्या है, टोटल डेटर इज द डेटर, हाँ 8 lakhs, 8 lakhs में से 1,04,000 माइनस करना है। सो 8 lakhs माइनस 1,04,000, सो कितना बचेगा, 8 lakhs माइनस 1,04,000, 6,96,000। तो पूरा ऐड करने पे इट इज 8 lakhs। और हमारे पास बिल्स रिसीवेबल भी है। सो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट क्या दिया है क्वेश्चन में, बिल्स रिसीवेबल इज 1,16,000। तो यहाँ पे दिखाएंगे बिल्स रिसीवेबल 1,16,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 9,16,000। सो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है 9,16,000, 9,16,000। तो इसके बाद वी विल राइट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश ऑन हैंड है, कैश ऑन बैंक बैलेंस है। सो अगेन यहाँ पे फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, we go to sixth note, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दो चीज लिखेंगे, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कितना है, 1,20,000 and 9,88,000. So I will write here 1,20,000, 9,88,000। so दोनों को ऐड करने पे it will be 11,08,000. so cash and cash equivalent is 11,08,000। दोनों को ऐड किया, हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला। अभी लिखना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में देखो कोई भी टाइप का एडवांस है, लाइक टेंडर डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टाफ एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, दैट इज स्टाफ एडवांस 1,94,800। तो यहाँ पे क्या है 1,94,800 और यहाँ पे वी कैन राइट ब्रैकेट में स्टाफ एडवांसेस। इसके बाद अदर करंट असेट में हम फिक्टिशियस असेट लिखते हैं, पर ऑलरेडी हमने फिक्टिशियस असेट को अदर नॉन करंट असेट में लिख लिया है। तो अदर करंट असेट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग वी हैव रिटन, एवरीथिंग वी हैव रिटन। सो इसके साथ दिस वी हैव टू टेक द टोटल
सो टोटल करके देखते क्या आ रहा है. Take the total 40 lakh, 8 lakh, 80, 6 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 80, 10,000 and 22,000, 58 lakh, 92,000. असेट साइड का भी टोटल लेना है. 24 lakh 70,000, 1 lakh 50,000, 53 200, 10 lakh, 9 lakh 16,000, 11 lakh 8,000, 1 lakh 94 800. Total is coming to 58 lakh 92,000. With this, the sum is done, and here proposed dividend. What is proposed dividend? Is 40 lakh का 6%, which is equal to 2,40,000. This just we have to write with the notes forming part of account. The directors have recommended 6% dividend. यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं बताया ना. कंटिंजेंट लाइबिलिटी 2 था. इससे फर्स्ट क्वेश्चन में कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाज देयर, बट वी हैव नॉट शोन इट डाउन. तो एक मिनट रुको. नोट्स फॉर्मिंग part of accounts. What is it? Contingent liability. Contingent liability में what is there? Contingent liability में we have investments, partly paid investment. Just we will write here partly paid investments and bills discounted but not matured. Bills discounted but not matured. ये दो हमारे पास था. एक तो इन्वेस्टमेंट 5,000 का 10 रुपीज का, बट ओनली 4 इज कॉल्ड अप. तो 5,000 into 6 is still we have to pay. 5,000 into rupees 6, which is equal to how much? 5,000 into 6, which is equal to 30,000. And bills discounted but not matured is 15,000. Bills discounted with the bank but not matured is 15,000. Done. With this, we are done for today.